Hello student. Next topic of our discussion is ultrastructure of chromosome. Now look at this figure. This figure showing the structure of chromosome. This is the two chromatids. At the time of cell division, chromosome divides into two chromatids. This is a metaphase chromosome. Metaphase stage, two chromatids are formed. Now here the important things which we are going to discuss, that is this primary constriction. Primary constriction, which is also called as centromere, or it is also called as kinetochore, and this is the site for attachment of spindle fiber at the time of cell division, that we will discuss later. So the first important thing is this primary constriction. Here in this figure it is shown here, this primary constriction or centromere. Then this secondary constriction. Secondary constriction is called nucleolar organizer. Secondary constriction is a nucleolar organizer. And then satellite and telomere, these are the other parts. In some chromosome, the secondary constriction 2 is also present. Secondary constriction 2 is there. So we will discuss it in detail. In earlier studies, the chromosome supposed to be covered by a membrane pellicle. Electron microscopic studies showed that there is no membranous pellicle surrounding the chromosome. What does it mean? पहले जो स्टडी हुई थी उसमें ऐसे पाया था, ऐसे उन्होंने रिपोर्ट किया था कि क्रोमोसोम पे एक लेयर होती है, कवर करता है ये लेयर, दैट इज कॉल्ड पेलिकल. ये यहाँ ये डायग्राम में दिखाया है, पेलिकल कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस पेलिकल. बट लेटर ऑन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज शोड दैट देयर इज नो मेम्ब्रेनस पेलिकल सराउंडिंग द क्रोमोसोम. ऐसा कुछ पेलिकल नहीं होता है. स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इंक्लूड्स सेंट्रोमेयर. दिस इज सेंट्रोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. देन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, nucleolar organizer. This secondary constriction is a nucleolar organizer. Telomeres and satellites. Under the light microscope, the metaphase chromosome appears to be made up of two subunits called chromatids. Here we have seen these two chromatids. At the time of metaphase chromosome, it appears two subunits called chromatids. Each chromatid is consist of two chromomere. एक क्रोमेटिड के अंदर दो क्रोमोमेयर. दो क्रोमोमेयर मतलब दो डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, तो दो क्रोमोमेयर है इसमें. सेंट्रोमेयर. द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रोमेयर इज फंक्शनल. ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तो ये सेंट्रोमेयर फंक्शनल होता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इस सेंट्रोमेयर को स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. स्पिंडल फाइबर प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो दो क्रोमेटिड्स, दो डॉटर सेल की तरफ खींचते हैं. द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम. इसका पोजीशन कांस्टेंट होता है. द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द सेंट्रोमेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दिस इज द इम्पोर्टेंट सेंटेंस. The spindle fibers are attached to the centromere during cell division. The shape of the chromosome during anaphase movement depends upon the position of the centromere. Shape of the chromosome, जब ये मूवमेंट होता है, जब ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जो क्रोमोसोम का शेप बनता है, एनाफेज स्टेज होती है माइटोसिस की उस टाइम पे, तो एनाफेज मूवमेंट उसको बोलते हैं. एनाफेज मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर. Following four categories are recognized depending upon the position of the centromere.
सेंट्रोमेयर्स की पोजीशन क्रोमोसोम में कहाँ है, दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे हम देखेंगे पहला मेटासेंट्रिक द सेंट्रोमेयर इज नियर द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। लुक हियर, दिस इज अ मेटासेंट्रिक। तो ये है सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, two equal arms of the chromosomes are formed. The two arms of chromosome are nearly equal. The chromosomes appear V-shaped during anaphase movement. तो ये सेंट्रोमेयर बीच में होने के कारण दो इक्वल आर्म्स बन गए क्रोमोसोम के, और ये जब इसे खींचा जाएगा एनाफेज मूवमेंट के टाइम पे ये इसे खींचा जाएगा, तब इट लुक्स लाइक वी शेप्ड। So this chromosome is called metacentric chromosome. Now this next one is submetacentric. ये है submetacentric. If the centromere is situated some distance away from the middle, तो ये सेंट्रोमेयर मिडल में नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक आर्म जो है लॉन्ग है और एक है शॉर्ट आर्म। तो इट अपीयर्स एल शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेज मूवमेंट जब होगा इस क्रोमोसोम का, तो इट अपीयर्स एल शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड नियर द एंड, नॉट एट द एंड, नियर द एंड। तो एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा है, इट कंप्राइजेस सम 90%, एंड एक छोटा सा आर्म है, दैट इज 10%। ओके। टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। तो एक ही आर्म बना है ये, और इसके टिप पर ये सेंट्रोमेयर है। सो दीज आर द 4 टाइप्स: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। दिस इज एज पर द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। देन पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सब रेयरली होता है। पॉलीसेंट्रिक, द सेंट्रोमेयर इज नॉट लोकेटेड इन वन पोजीशन बट लाइज इन डिफ्यूज कंडीशन। तो इस ऐसी सिचुएशन जब होती है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो बहुत सारे ये सेंट्रोमेयर होने के कारण ये क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ माइटोटिक डिवीजन कहीं नहीं जाता, ये लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली अटैच नहीं हो सकते हैं। असेंट्रिक क्रोमोसोम, असेंट्रिक, समटाइम्स ए क्रोमोसोम में अंडरगो ए ब्रेक into two, so that only one part has centromere while the other is without the centromere. The part lacking the centromere is called acentric fragment. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है, look here, this is the chromosome. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमेयर यहाँ लोकेट है, ये है सेंट्रोमेयर। अगर क्रोमोसोम यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक होता है, ओके, यहाँ से अगर ये क्रोमोसोम टूटता है तो इसके 2 टुकड़े बनेंगे। ये एक जिसमें सेंट्रोमेयर है नहीं, लैकिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, और ये दूसरा जिसमें सेंट्रोमेयर है। तो ये जो दूसरा टुकड़ा है, यहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये माइग्रेट होगा डॉटर सेल में। बट ये जो पहला टुकड़ा है जिसमें सेंट्रोमेयर नहीं है, तो यहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो सकते हैं। तो दिस पोर्शन विल बी लॉस्ट, इट विल नॉट माइग्रेट आइदर ऑफ द डॉटर सेल। तो इसके अंदर जितने भी जीन्स आए, सब ये जीन्स लॉस्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, एंड इट विल रिजल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो यही यहाँ लिखा है, असेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर नहीं होता है वो असेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ये है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। दिस पोर्शन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ही न्यूक्लियोलस बनाता है।
न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस में जो जितने भी डीएनए होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आरआरएनए एंड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, और ये दोनों मिलाकर आरआरएनए प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इससे बनता है राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त काम में आता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में बनता है। किससे बनता है? आरआरएनए और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2 ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होता है और इसका कोई फंक्शन भी नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका एक यूज है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, वन और मोर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। लोकेशन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन is constant for a particular chromosome and it is useful for identification of chromosome. Satellite, ये पोर्शन है सैटेलाइट। दिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर is a very short and appears like a sphere satellite. In human, chromosome number 13, 14, 15, 21 and 22 and Y chromosome have nucleolar organizer and satellite. ह्यूमन क्रोमोसोम में 13, 14, 15, 21, 22 एंड Y क्रोमोसोम में सैटेलाइट है। इसे सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, SAT, सैट क्रोमोसोम। सैट का लॉन्ग फॉर्म है सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको। सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको मीन्स थाइमिन न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग पार्ट। Telomeres, the tip of the chromosomes are called telomeres. It has a unique property that it prevents the ends of the chromosome from sticking together. Telomeres are typically or specifically modified for attachment to the nuclear envelope. ये टीलोमेयर होते हैं। टीलोमेयर मतलब लास्ट टर्मिनल पोर्शन, ये टीलोमेयर। ये टीलोमेयर एक दूसरे से क्रोमोसोम 20, देर आर 46 क्रोमोसोम। अगर हम ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हैं तो 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। दे आर, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस टीलोमेयर। Unique property, it has a unique property that it prevents the ends of the chromosomes from sticking together. तो रिपल्सिव एक्टिविटी होती है इसमें। और ये जो टीलोमेयर्स होते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को ऐसे अटैच होते हैं। So this is all about the structure of the chromosome. So we stop here. Thank you.